हेलो, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज जो है वो क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मेरी आवाज क्लियर है? Just a minute. Let me drop the message in the group. Just a minute. We're going to start today's session in couple of minutes. Okay. So we're going to start today's session in 2 minutes. ठीक है? प्रीवियस कोई क्वेश्चन, प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, यू कैन टेक्स्ट एनीथिंग. Hello everybody.
today's session is going to be started in couple of minutes. ठीक है? Just in 2 minutes, we are going to start today's session. Shamim, welcome. I guess this is your first session. Anybody has any kind of query or question, anything, he can text. ठीक है? साइड में chat का है, you can text there. We have already completed almost जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं. Today's session is going to be regarding the mensuration. We'll do the mensuration. इसमें अब रहता है DI, एक तो हम करेंगे DI और we'll do something some of the questions from the probability. ठीक है? Probability और and permutation and combination. उन टॉपिक से हम एक और सेशन करेंगे. ठीक है? वालेकुम सलाम, कैसे हो तौसीफ? ठीक हो आप? चलो अच्छी बात है. एग्जैक्टली वी विल स्टार्ट इन. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र है रब का, शुक्र है रब का, बस बढ़िया. तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? चलो अच्छी बात है. चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं. शैल वी स्टार्ट? क्या कहते हैं, स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग द टाइम? चलो अच्छी बात है. So today's session is about the mensuration. Okay, fine. Just a minute. Let me first of all set my marker. ठीक है. ठीक है. Okay. So as far as the mensuration is concerned, it is all about the measurement. ठीक है? Measurement. ठीक है? You will see in this topic you will see the lot of different kind of the geometrical figures. ठीक है? Different kind of the geometrical figures that you are going to see in this. ठीक है? And so far when we see the mensuration, it's मतलब है कि frequently asked by any graduate level examination, चाहे वो SSB हो चाहे वो PSC हो. ठीक है? हर जगह पे जो ये है mensuration के related जो है topics आ ही जाते हैं. ठीक है? Today's session is going to be mensuration. Now how we are going to approach this topic, let me tell you one thing. इसमें आप देखते हो दो types के geometrical figures. One is called as a two-dimensional figure, another is called as a three-dimensional figure. Okay, either there can be the 2D figures or the 3D figures. Two-dimensional figures कैसे होते हैं? Let me tell you. It's always going to be on the surface. जो two-dimensional figure होते हैं वो surface पे होते हैं. For example, when you talk about, let us say there is a square, ठीक है, a quadrilateral figure, there is some rectangle, ठीक है, okay, there is some rhombus like this or a parallelogram, ठीक है, same kind of thing, ठीक है, or there can be a triangle, there can be a circle, ठीक है, there can be a trapezium like this. These are all the figures that you see, the two-dimensional figures, ठीक है, circles, everything. ठीक है? You need to see the different quantities regarding these figures. और उनमें से क्या आप देखते हो? इनमें आप दो quantities का आप लोगों को जो है पता करना होता है. One is called as the area, another is called as a perimeter. Perimeter.
ठीक है. एरिया एंड द पेरीमीटर आर द टू क्वांटिटीज दैट यू नीड टू फाइंड आउट फॉर टू एनी जो है 2D फिगर. ठीक है, यही होता है मेंसुरेशन. इट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट. ठीक है, डिफरेंट फिगर्स होते हैं. 2 डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आल्सो देयर एंड आल्सो देयर कैन बी द 3 डायमेंशनल फिगर्स. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द 3 डायमेंशनल फिगर, इसमें आपको एक और क्वांटिटी जो है ऐड ऑन होती है. ठीक है, लेट मी टेल यू. एरिया भी होता है एंड हियर इन केस ऑफ द 3D फिगर्स यू कंसिडर सरफेस एरिया. ठीक है, आपने अक्सर नाम सुना होगा फाइंड द सरफेस एरिया. And in case there are this curved kind of the surfaces, then it is frequently asked that the curved surface area. Curved surface area आपसे मांगा जाता है. Okay. Then now what are these 3 dimensional figures? अच्छा, एक तो हो गया एरिया. ठीक है, पेरीमीटर भी आप देखते हैं, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मांगी जाती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ वॉल्यूम. ठीक. So what are the different parameters, different quantities that are asked and that you have to calculate or determine in the mensuration? इसमें आपने एरिया निकालना हो सकता है, इसमें आपने पैरीमीटर निकालना हो सकता है, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, या सिंपली आप कहोगे सरफेस एरिया निकालना होता है, या और इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम निकालना होगा. ठीक है, these are the quantities that you have to determine or measure in the different geometrical figures, and the different geometrical figures are grouped either the 2D figures or the 3D figures. अब based on these things यही है mensuration, इससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, ना इससे कम. ठीक है. एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या क्या आता है? देखिए, जब आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर है स्क्वायर, ठीक है, but when you take the 3 dimensional figure of the square it becomes the cube. ठीक है, रेक्टेंगल है 2D, 3 dimensional फिगर बन जाती है, उसको कहते हैं क्यूबॉइड. ठीक. ओके. एंड ऐसे ही सर्कल 2 dimensional फिगर है एंड दी व्हाट वी कॉल एज ए जो इसकी 3 dimensional फिगर है दैट इज द स्फीयर. स्फीयर और हेमिस्फीयर. ठीक है, ऐसे ही हमें बनता है लाइक द प्रिज्म. ट्रायंगल से हमें बन सकता है प्रिज्म. क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? प्रिज्म और पायरामिड. ठीक है. ठीक है, सर्कल से हमें एक और 3 डायमेंशनल फिगर बन सकती है एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज ए सिलेंडर. सिलेंडर भी बन सकता है. एंड आल्सो कून, अनदर 3 डायमेंशनल फिगर. स्कूल टाइम पे 10th क्लास में तो हम लोग ये सारा कुछ पढ़ते ही पढ़ते हैं. यू हैव गॉन थ्रू देयर दी. आपने देखा होगा वहां पे स्क्वायर भी देखा होगा, रेक्टेंगल भी देखा होगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम. ठीक है, और इन अदर वर्ड सर्कल. सर्कल के बाद स्फीयर भी, स्फीयर के साथ साथ सिलेंडर भी, कोन भी. ठीक है, आल्सो देयर यू माइट हैव सीन द पिरामिड और प्रिज्म. ठीक है, आपने एरिया भी निकाला होगा, वॉल्यूम भी निकाला होगा. सो दिस ऑल व्हेन यू सी ऑल दीज द टॉपिक्स अगेन. ठीक है, दिस इज द सेम थिंग. ठीक है, और यही कहलाता है हमारा मेंसुरेशन. ठीक है, 10th में हमारा हुआ करता था मेंसुरेशन के चैप्टर एंड द सेम थिंग इज हियर. ठीक है, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल यू विल बी आस्क्ड समटाइम्स टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम लैंड. ठीक है, अगर जो नायब तहसीलदार वाले हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप में से कोई जाएगा, ठीक है, या एज फार एज सिविल सर्विसेज कंसर्न, केएस में एक पोस्ट जो पहली पोस्टिंग होती है, आइदर यू आर गोइंग टू बी द बीडीओ इन द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आरडीडी डिपार्टमेंट में आप आइदर बीडीओ जाओगे, या अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपकी पहली पोस्टिंग होगी तहसीलदार. ठीक, तहसीलदार जो होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है. ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को तो लैंड पूरा ही मेजर करना होता है एंड दैट्स व्हाई यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द मेंसुरेशन. तभी तो इस पे से क्वेश्चन भी आते हैं. इज दैट ऑल क्लियर? ठीक है, नाउ विल सी दैट. अच्छा टॉपिक है, इतना भी टफ टॉपिक नहीं है. यू विल enjoy this very session. ठीक है, so first of all we are going to start with the, let me tell you, we are going to start with the 2 dimensional figures में हमने लिया पहले स्क्वायर. स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है स्क्वायर. देखिए, स्क्वायर की जब हम बात करते हैं एज फार एज द स्क्वायर इज कंसर्न, ठीक है, ये हमें पता है इसके जो साइड्स होते हैं इट इज डेजिग्नेटेड बाय ए और
ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता होता है। दूसरा जो ऑल द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी हमें पता होता है। एक और पॉइंट इसमें एडिशनल है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। if this is when you connect the corners, it's called as a diagonal. If it is a d1 and this one is a d2, so we can say that for the square d1 is always equal to d2, ठीक है। एंड अनदर थिंग वी ऑलवेज से दैट जो जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो दे बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर ये डायगोनल आ गया तो ये वाला डायगोनल है ये अगले डायगोनल को दो हिस्सों में काटता है। And same is the case with this very diagonal. If this is the diagonal and it cuts this diagonal into the two parts. So very important thing that you need to take the मतलब ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर की जब आप बात करते हैं यही चीजें हैं, ठीक है। और when you are asked to calculate its area is always you know that it is a square, and when you are asked what it is its perimeter हो गया it is simply the length, मगर कौन सी लेंथ? आउटर लेंथ, ठीक है। अब देखिए when you are asked to calculate its outer length, you have to measure, you will start from this, let us say this is A, this is B, this is C and this is D, ठीक है। आप यहां से जाओगे, first you will go from A to B, ठीक है, then you will go from B to C and then you will go from C to D and then you will go from D to A. And when you measure all these lengths, if you see that A to B is A, it is equal to A plus A plus A and plus A, and overall it is going to be equal to, for the square perimeter is going to be equal to the 4A, ठीक है। This is the common topic as far as the नायब तहसीलदार वालों के, if you certainly आप लोगों ने जो है एनडी के लिए भी अप्लाई किया होगा, ठीक है, वहां पे भी ये सिलेबस में है। सो इट्स गोइंग टू कैटर, दोनों का जो सिलेबस है उसे कवर होगा, ठीक है, दोनों के टॉपिक्स उसमें ये बेस्ड ऑन दी दोनों एग्जाम्स को मद्देनजर जो है देख के मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सो फॉर द स्क्वायर नाउ इट्स क्लियर टू यू पीपल, एक तो एरिया होता है दैट्स इक्वल टू 4a, दैट्स a स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द a स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा इफ दिस इज अ साइड एंड देन कैलकुलेट दी, यू विल बी आस्क्ड द कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो इजी नहीं पूछे जाएंगे। Now you, what is the question? Question can be like this. अब स्क्वायर पे ही होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? What is the ratio of the square? ठीक है, to the, what is the ratio of the squares to the another square? Sorry, it's the, what is the ratio of the, अच्छा, made by the diagonal. Let me tell you, it is a one square, एक स्क्वायर है, it is the ratio of the area आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एरिया मैं भूल गया हूँ लिखना, और द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द वन स्क्वायर टू द अनदर स्क्वायर मेड फ्रॉम इट इज डायगोनल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज द क्वेश्चन। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका ये डायगोनल है, इसके डायगोनल पे मेरा एक और स्क्वायर बन गया, ठीक है, दिस अनदर स्क्वायर। अब इसका भी कुछ सडनली इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, ठीक है। लेट अस से दिस इज द एरिया 1 एंड दिस इज द एरिया 2, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ A1 टू द A2, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। जेकेपीएससी क्या यूपीएससी भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट one square is formed from it is diagonal, ठीक है। now how you are going to approach this everything, you know that let us say जो पहला वाला जो स्क्वायर है इसका साइड हमारे पास a है, ये भी a है। now you know that कि ये जो हमारा ये बन गया एक राइट एंगुलर ट्रायंगल, everybody knows this very thing, this is here the right angle triangle। so for this right angular triangle अगर मुझे इसका हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो क्या है? इजी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कितना है वो? that is again you can apply the Pythagoras theorem, it is going to be equal to the hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो base जो है वो a है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, so that is going to be hypotenuse square, or in other words hypotenuse is going to be equal to twice a square, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो किसके बराबर है ये बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो डायगोनल है जो पहले वाले यानी कि जो ये वाला
एरिया है, ये वाला स्क्वायर, इसका डायगोनल जो हमारे पास है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2. नाउ यू सी दैट दिस इज गोइंग टू बी द साइड फॉर द अदर स्क्वायर. ठीक है, सो हम कहेंगे जो दूसरा वाला स्क्वायर है उसका साइड है a स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर रूट 2. एंड यू आर आस्क्ड कैलकुलेट देयर रेशियोज ऑफ देयर एरिया. इट इज गोइंग टू बी पहले वाले साइड के लिए, पहले वाले स्क्वायर के लिए क्या एरिया है, दैट इज सिंपली द a स्क्वायर. बट दूसरे वाले स्क्वायर के लिए क्या साइड है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी, a square root of 2 का whole square. Is that clear? So it is going to be equal to a square divided by a square. ठीक है, square root of 2 का square. So a square and a square is going to be cancel out. a1 by a2, it is going to be like this. So we can say that it is equal to the 1 by 2. So हम कह सकते हैं अगर दो स्क्वायर्स हैं, if there are the two squares, ठीक है, वन स्क्वायर जो दूसरा वाला स्क्वायर है वो पहले वाले स्क्वायर के डायगोनल पे बना है. सो आई कैन से दैट हियर यू कैन राइट a1 by a2 इट इज इक्वल टू 1 by 2. इफ यू, अगर आप 2 को इधर लेके जाओ, a को इधर, a2 को इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा. सो यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस a1 इट इज इक्वल टू a2. ठीक है, इसका मतलब है जो दूसरा वाला एरिया है, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया है, वो पहले वाले स्क्वायर का दुगना होता है. नाउ दिस इज द, यू कैन से दैट है शॉर्टकट रूल. नाउ यू कैन रिमेंबर दिस वेरी थिंग. अगर दूसरा स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर के डायगोनल पे बना है तो सर्टेनली जो पहला वाला स्क्वायर है उसका जो एरिया है, ठीक है, जो दूसरे वाले का स्क्वायर है वो उसका दुगना होगा. अगर मान लीजिए अगर इसका, अगर यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे इफ यू आर सेइंग दैट इफ द साइड इज 10, इसका एरिया क्या आएगा 100. Certainly, what is going to be the area of the another square that is made from its diagonal? It is going to be equal to the 200. Simple बात. ठीक है, is that clear? Now it is clear. Kindly text. मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, ठीक है. Okay. Now coming to the next question. इससे टफ नहीं आ सकता है स्क्वायर में से, ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता. नाउ मूविंग अहेड, हियर इज द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट. ठीक है, एट द रेट ऑफ, जो कि रेट है इसमें 20 रुपीज पर मीटर. इफ द अनदर स्क्वायर इज मेड फ्रॉम इट्स डायगोनल इज ये जिसका स्क्वायर है, जिसका एरिया है इतना. क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जो कि, अब क्या कह रहा है कि दूसरा स्क्वायर है इसके डायगोनल से बना है, इसका, इस वाले का एरिया है 648 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आप मुझे बोलिए कि अगर मुझे इसकी फेंसिंग करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. अब ध्यान में रखिए, आपने निकालना क्या है, कैसे आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जबकि 1 मीटर को फेंसिंग करने में 20 रुपए का खर्चा आता है. यानी कि मेरे पास ये स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. आपको निकालना है इसकी फेंसिंग, फेंसिंग में कितना कॉस्ट है. अब दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस स्क्वायर. और बताया जा रहा है कि एक और है जो कि इसके डायगोनल से बना हुआ है, उसका एरिया इतना है. तो मुझे बोलिए जो पहला वाला स्क्वायर है उसका क्या एरिया होगा. सर्टेनली द हाफ ऑफ दिस 600. व्हाट इज दैट, बाद में देख लेंगे. आपने तो क्वेश्चन ही सॉल्व किया, दैट्स गुड, अच्छी बात है. पहले मुझे ये बोलो, इस वाले जो पहला वाला स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा. व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर. Certainly the half of this, that's going to be 324. Very good, 324. अब मुझे बोलिए, this is the, if this is the area first, this is, इसका एरिया आया 324. Let this be the a be the side of that square. It is going to be equal to the a square. So आपको यहाँ पे मिलेगा साइड, साइड का वैल्यू क्या आएगा, that's going to be equal to the square root of 324. कितना हो गया वो, ठीक है, क्या आएगा, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 324. क्विकली आप एक काम कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेरेंट, ठीक है, दैट यू शुड नो द स्क्वायर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 9 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है, 11 का स्क्वायर क्या है, 13. ठीक है,
एंड कीप इट अप टू 30 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो याद रखो, ठीक है। जैसे हमने रेशोज याद रखने हैं ऐसे हमने स्क्वायर्स भी याद रखने हैं। व्हाट इज दैट? अब मुझे बोलो ये कितना बनता है यहाँ पे? दिस गोइंग टू बी 18, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4 इज 18, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4। तो बन गया हमारा एक साइड किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो मुझे बोलिए जो इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगी? फॉर दैट रीजन यू हैव टू कैलकुलेट इट्स टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर। आपने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू द 4a। तो आ गया इसमें दूसरी क्वांटिटी। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, जो कि किसके बराबर है? 4a के बराबर। दैट्स इक्वल टू द 4 इंटू a किसके बराबर है? 18। 4 इंटू 18 कितना होता है? 4 इंटू a कितना? 18 कितना होता है? 4 इंटू 18, ठीक है। हाँ जी, क्षेत्र 200, वेरी गुड, दैट्स गुड। 72 आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर इज 72, बट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो क्या आएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? तो अब आपको पता है पेरीमीटर आपके पास है 700 हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग जो है दैट विल बी 772 इंटू 20 के हिसाब से। तो वो क्या बनेगा? 1400 भी नहीं आएगा। कैसे आएगा 1400? 1440 2 to the 4, हाँ ठीक है, 1440। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, देखिए मैं उतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल टेल यू व्हाट कैन बी द, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में होता है इधर, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेट मी टेल यू, आई एम हियर टू टेल यू व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क, ठीक है। तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू डू द प्रैक्टिस एट योर प्लेस। आप लोगों के पास जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड सी सैट की बुक्स होंगी, ठीक है। गो थ्रू दोज टॉपिक्स एंड डू दी मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एट योर प्लेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास है, लिमिटेड क्लास है, हियर आई हैव टू टेल यू दी नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उतना बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, नाउ अनदर इज द रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? लेट मी टेल यू, स्क्वायर का ही अगर हम देखेंगे, स्क्वायर ये भी एक क्वाड्रिलेटर ही होता है। क्वाड्रिलेटर होता है जिसको हम कहेंगे 4 साइडेड फिगर, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट करूं, ठीक है, तो हमें मिलता है रोम्बस। अब रोम्बस में क्या फीचर्स है? लेट मी टेल यू, रोम्बस ऐसे टिल्ट करना है कि भाई देखिए डायगोनल जो है डिफरेंट तो नहीं होंगे व्हेन इट गेट्स टिल्टेड। यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट सेम, बट उनमें एक फीचर तो भी रहता है स्क्वायर का, वो ये कि दे आर सिटल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे डू बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाँ अलबत्ता इसके साइड्स बराबर होते हैं बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एक तो साइड्स तो बराबर होते हैं लाइक द स्क्वायर, ठीक है, वो भी हो गया, मगर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यू विल नॉट नेवर से दैट d1 is going to be equal to d2, ठीक है। बट you will always say that d1 is perpendicular to d2 and also d1 bisects d2 and vice versa, d2 bisects d1। so this is a feature of the rhombus, ठीक है। यहाँ पे भी आपने जो है when you are asked the parameter तो है वो तो वैसा ही होगा, that's going to be equal to the 4a, ठीक है। पेरीमीटर इज गोइंग टू बी द 4a, बट द एरिया अगर आपने निकालना है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आइदर, आप इसके दो फॉर्मूलाज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट डाउन दिस वेरी थिंग। इट कैन बी, इसका एरिया इज कैन बी 1/2 ऑफ d1 इंटू d2। अक्सर जो है आपको जो है एरिया निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल से ही मिलेगा आप, ठीक है। Okay, or in other words you may be also asked, there is another kind of the formula that is area is equal to the side into height, where height क्या होती है? let me tell you, अगर मैं यहाँ पे ये rhombus है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर जो है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज h, इज दैट क्लियर?
अगर ये गिवन होगा और आपके पास एक साइड दिया हुआ होगा, ठीक है, देन यू कैन गो थ्रू विद दिस फार्मूला. बट इफ यू आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, you are given in terms of the diagonals, so you can also use this formula. Very important. अक्सर जो है ये वाली फॉर्मूला जो है हम लोग यूज ही नहीं करते. लेट मी टेल यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एज फार एज द रोम्बस इज कंसर्न. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, नोट किया? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास है रोम्बस जिसका साइड दिया हुआ है. साइड किसके बराबर है? इसका साइड क्या है? इट साइड इज 20. मगर क्या कह रहा है कि इसका एक डायगोनल जो मेरे पास है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 32. ठीक है, इट्स वन डायगोनल इज 32. ओके, सो ये साइड भी 20 है. ओके, आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड इट्स एरिया. फाइंड इट्स एरिया निकालना है. अब आप मतलब यानी कि इट्स अ मिक्सचर काइंड ऑफ थिंग. ना तो यहाँ पे D1 D2 दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है. ठीक है, एंड ना तो आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है. ठीक, now how you are going to approach this kind of question, now you know that. अब देख लीजिए how you are going to see this very thing. अब मैंने आपको फीचर बोला, व्हाट इज द रोम्बस. रोम्बस का क्या फीचर है? रोम्बस का ये फीचर है, दे आर परपेंडिकुलर एंड दे डू बाइसेक्ट. इसका मतलब है अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, क्या करूं ड्रा, यहां से एक डायगोनल ड्रा करूं, सो ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल का परपेंडिकुलर होगा एंड आल्सो इट इज गोइंग टू बाइसेक्ट दिस वेरी डायगोनल. तो इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक 16 है तो यहां से लेकर यहां तक भी 16 होगा. तो टोटल ये बनेगा, इट इज अ काइंड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर आप देख सकते हो वो 16 है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज गोइंग टू बी द 20. इज दैट क्लियर? तो अब आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम से यू नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, यू कैन फाइंड आउट दिस बेस, यहां से लेकर यहां तक का आपको पता चलेगा. सो आप निकाल सकते हो बेस स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वो किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? दैट इज 16 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 20. सॉरी 20 पहले, दैट इज 20 माइनस 16 का स्क्वायर. गया गाड़. ठीक है, ये तो निकलता ही नहीं. ठीक है, तो 20 का स्क्वायर मैंने अभी बोला, स्क्वायर्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, काइंडली राइट डाउन दिस वेरी थिंग ऑन योर कॉपी. जो है मेक श्योर ये आप नोट करके रखोगे स्क्वायर्स. ठीक है, अप टू 30 सारे स्क्वायर्स लिख के रखो एंड सो दैट आपको जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो जाएगी. 20 का स्क्वायर होता है 400. ठीक है, माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256. ठीक है, अब इन दो को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज गोइंग टू बी द बेस. तो बोलिए क्या आएगा वो वैल्यू? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू? हाँ जी, बेस इज 12. वेरी गुड, चलो अच्छी बात है. 12 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 144. दैट इज 12 का स्क्वायर, दैट इज बेस इज गोइंग टू बी 12. ठीक है, 144 यहाँ पे आएगा व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वेरी थिंग एंड यू विल गेट द बेस. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू है दैट इज द 12. तो इसका मतलब ये भी 12 है. तो दूसरा वाला डायगोनल भी हमें मिला, दैट इज D2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24. अगर आपका D1 पहले ही गिवन है दैट इज द 32. नाउ यू कैन फाइंड द एरिया. व्हाट इज द एरिया? एरिया इज 1/2 ऑफ D1 into D2. इज दैट क्लियर? नाउ इट इज इजी. ठीक है, तो बोलिए एरिया क्या आएगा? सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 384. ठीक है, मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में? वन साइड ऑफ इट इज 20. हाँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. नाउ इट इज क्लियर? यस यस. मूविंग अहेड, हमारे पास एक रोम्बस है. अनदर क्वेश्चन इज देयर ऑन द रोम्बस. ठीक है, दैट इज सेइंग एज ABCD. अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, A, I will consider this as an A. Just a minute. AC is going to be equal to, हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, A, B, C and D. ठीक है, दिस इज B here. ओके, तो क्या कह रहा है? AC यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला डायगोनल है, लेट मी टेल यू, दिस डायगोनल इज इक्वल टू द 18 सेंटीमीटर. और बोल रहा है
एंगल ए बी सी, ए बी और सी, ये वाला एंगल कितना है? ये 60 है। अब बोलिए, अगेन यू आर सीइंग द इनकम्प्लीट काइंड ऑफ द जो डायमेंशंस या गिवन जो आपको दिया हुआ है, बट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ द पेरीमीटर। ठीक है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी क्वेश्चन। नाउ देखिए, अगर आप यहां से एक और डायगोनल ड्रा करोगे, दिस इज नाउ यू आर सीइंग दैट ये कितना है? 60। और जो डायगोनल है ये इसको जो है, ये अगर ये बाइसेक्ट करेगा, यहां से भी उतना ही एंगल, यहां से भी उतना ही एंगल, तो आप कह सकते हो ये यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो हमें क्या बना है यहाँ पे, एंड ऑल्सो यहां से लेकर यहां तक जो AC है, AC इज 18, सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज हाउ मच? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? वो 9 है। सर ये इट इज 9। ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, आप अप्लाई करोगे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लेट अस से दिस इज O। सो आपके पास बना एक राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये O है, ये B है, ये C है, और आपको पता है जो OC है दैट इज OC दैट इज इक्वल टू 9, और आपको पता है एंगल जो ये वाला एंगल है OBC, OBC ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये क्या है? ये 60 है। trigonometric ratios, ठीक है। now you know that what is, now you are going to apply the trigonometric ratio वाली फॉर्मूला। क्या लगाओगे? आपने निकालना क्या है? you can find out the, आपने साइड का कुछ नहीं करना है, आप ये वाला निकालोगे, that is OB। OB is more important, that is perpendicular। you can say that perpendicular by base, what is that? that is 10। ठीक है, 10 of perpendicular, 10 of 60, 10 of 60 is going to be equal to perpendicular by base, base is 9। so you can say that your P perpendicular जो है वो किसके बराबर है? that's going to be equal to 9 into 10 of 60। जरा देखो 10 of 60 किसके बराबर है? what is that? हाँ जी बोलिए, 10 60 किसके बराबर है? ऐसे ही देख लो कहीं से वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी मेंसुरेशन में इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, 1060 पता है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हुआ? वाई यू आर साइलेंट? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलो ठीक है, रूट थ्री का वैल्यू है वो, चलो ठीक है, आई विल ट्रीट एज रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जरा अगर आप देखोगे 9 इंटू 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यू विल टेक इट एज रूट थ्री। ठीक है, सो आपको मिल गया क्या? आपको यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ दैट। ठीक है, सो आपको मिलेगा फिर नेक्स्ट वाला पार्ट भी। अगर यहां से लेकर यहां तक है 9√3, तो फिर यहां से लेकर यहां तक भी है 9√3। ठीक है, सो यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9√3 प्लस 9√3। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 18√3। ओके, और दूसरा क्या है? 18। सो 1/2 ऑफ 18√3 प्लस 18, सॉरी इंटू 18, दैट्स गोइंग टू बी इट्स वैल्यू। ठीक है, इसका जो आप सोल्यूशन निकालोगे दैट्स गोइंग टू बी इसका फाइनल वैल्यू इसका। इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? टफ नहीं है, इट्स नॉट टफ। टफ कहां से है? टफ कहां से है? ये तो इजी है। टफ क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें जो रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन होंगे वो तो इजी ही होंगे, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट दैट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? लेट मी शो यू दिस वेरी थिंग। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मान लीजिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल मानते हो और ये मानते हो आप थीटा, ठीक है, ये एंगल है, इसको मान लीजिए थीटा। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि बेसिक है।
ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। मैथमेटिक्स हम लोग 10th में अप्लाई करते हैं। पहले आप देखते हो साइन वाला, साइन किसके बराबर होता है? वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इसका थीटा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। वो किसके बराबर होता है? वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, दैट्स कॉल्ड एज tan थीटा। वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इट। अब फिर उसके बाद जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। सो कीपिंग दैट वेरी थिंग असाइड, ठीक है, जहां जहां यूज करना होगा वो हम सीख लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब हमारे पास एक और फिगर है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, लेट मी टेल यू, इसमें अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल और पैरेलल, ठीक है। ये वाला साइड इसके बराबर होगा और इसको पैरेलल भी होगा, एंड दे आर परपेंडिकुलर, एवरी साइड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एवरी साइड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर, एंड आल्सो जो डायगोनल्स इसमें होते हैं वो बराबर होते हैं। हियर यू सी दैट स्क्वायर की तरह d1 इज इक्वल टू d2, ठीक है। तो अगर आप कहते हो इसमें एक साइड आप कहते हो लेंथ, इसको आप लेंथ मानते हो और इसको आप मानते हो ब्रेड, ठीक है। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ ब्रेड, ठीक है। तो अगर आपने निकालना है इसका एरिया, एरिया इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। और अगर मुझे निकालना होगा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड। सो आपको लेंथ आई 2 बार, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 2l, प्लस ब्रेड भी 2 बार, वो आई 2b। सम पीपल हैव करली, हाँ सर्टेनली, वो आप यस यस, दैट इज फॉर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। दैट इज द ट्रिक। अब विल अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कहीं पे यूज करना होगा, देयर यू विल सी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट मच, मतलब उतना नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, बट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि इनने बोला some people have curly black hair, देख साइन people have, वो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, curly that is cos, ठीक है, cos of curly black hair that is base by hypotenuse, very good। फिर इसने बोला to present beauty, that is tan of theta is to present beauty, that is perpendicular by base। it's a very good trick, ये हम स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, this way you can memorize this very thing, तौसीफ आपके लिए अच्छी ट्रिक है, ठीक है। बट कमिंग बैक, ये पेरीमीटर जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 हम कॉमन निकालेंगे, इट इज द लेंथ प्लस ब्रेड। नाउ इज दैट क्लियर? सो हमारे पास जो एज फार एज रेक्टेंगल इज कंसर्न, इसमें ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरी फॉर्मूला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो आप करोगे, पेरीमीटर निकालना होगा या रेक्टेंगल निकालना होगा या एरिया निकालना होगा, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट यू विल डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि योर रेशियो ऑफ द ब्रेड length to the breadth is going to be equal to length to the breadth is going to be equal to the 3:2, ठीक है। ए मैन कवर्स ए बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब उसके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, इसने इसकी जो बाउंड्री है उसको कवर किया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसने इस बाउंड्री को कवर किया 8 मिनट्स में, किसने किया? 8 मिनट्स में इसने कवर किया, ठीक है। रिमेंबर दिस वेरी थिंग, ही कवर्स दिस होल डिस्टेंस इन 8 मिनट्स, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है, एट द स्पीड ऑफ, जो वो बंदा चल रहा है, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमें यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना। देखिए ना तो आपको लेंथ दी हुई है, ना तो आपको ब्रेड, रेशो दिया हुआ है। यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ दिस 3x 2x, ठीक है। तो आप कह सकते थे आपका जो एरिया है दैट वाज इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेड,
So you can say that it might be 3x into 2x, that's going to be equal to 6x square. तो इसका एरिया हो सकता है 6x square provided if you know the value of x. ठीक है, now you can say that. अब देखिए how we are going to do that. अच्छा, एक और चीज, अगर मैं पेरीमीटर बोलूं, जो इसका डिस्टेंस है, पेरीमीटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड. ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ इज 3x प्लस ब्रेड इज 2x. ये 2x है यहाँ पे 2x, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 और 2 कितना होगा 5x, 5 टू द 10x. तो इसका मतलब है इसका जो पेरीमीटर है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 10x. 10x इज द टोटल डिस्टेंस. और अगर मैं कहूंगा जो ये स्पीड है, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो मगर जो स्पीड है इट इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर. मुझे ये लेना है, मैं मीटर पर मिनट के हिसाब से ले लेता हूं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ मिनट्स में. ठीक है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस वेरी थिंग. तो आप क्या करोगे, स्पीड को आप लिख सकते हो यहाँ पे 12, किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 टू द रेज 1000, यानी कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. डिवाइडेड बाय करूंगा 1 घंटे में 60 सेकेंड. ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे 6 1 6 2 12. इट इज गोइंग टू बी इक्वल, स्पीड यहाँ पे है 200 मीटर पर मिनट, आप लिख सकते हो. ठीक है, स्पीड इज हियर गोइंग टू बी इक्वल 200. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. ठीक है, ओके. तो हमारे पास अभी क्या आया, हमारे पास आया पेरीमीटर जो हमारे पास है दैट इज 10x, और जो हमने कहा जो स्पीड है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 200 मीटर्स पर मिनट. ठीक है, अब मुझे बोलिए स्पीड किसके बराबर, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो आप मुझे बोलिए जो डिस्टेंस है वो उसके पेरीमीटर के बराबर है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना इसको लगा 8 मिनट्स. ठीक है, 8 मिनट्स. तो आप लिख सकते हो, मगर ये स्पीड जो है वो है 200 मीटर. ठीक है, पर मिनट डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे मीटर के हिसाब से है. ठीक है, पर मिनट के हिसाब से. तो आप कह सकते हो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10x मीटर पर 8 मिनट. मिनट कैंसल आउट होगा. ठीक है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये 0 और ये कैंसल आउट होगा, और इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे. तो आपका जो x है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, देखिए x मिनट में काटूंगा क्योंकि x मुझे कोई नंबर निकालना है. x इज सम नंबर, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द यूनिट. सो x किसके बराबर आया, x इज 160. x का वैल्यू क्या आया 160. तो आप मुझे बोलिए अगर मुझे निकालना होगा इसकी लेंथ किसके बराबर है, दैट्स 3x, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 3 into 160. और अगर मुझे निकालना होगा इसकी ब्रेड इज 2x, दैट इज 2 into 160. ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल 320. यहाँ पे क्या है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द 480. इज दैट क्लियर. अब आप निकाल सकते हो यहाँ से एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड. ठीक, 480 into 320, जो वैल्यू होगा दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एरिया. अब बोलिए. ठीक है, हाँ जी, क्लियर. कोई क्वेश्चन. स्पीड पे बताइए सर. देखिए जस्ट पहले मुझे बोलिए, बाकी तो और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे इरेज करना है. ठीक है, मैं ये इरेज करता हूँ, देन आई विल राइट इट. देखिए मुझे यहाँ पे स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब मुझे पता है, देखिए
मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 किलोमीटर की जगह पे, 1 किलोमीटर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, सिंपल बात। और अगर मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड बाय 1 आवर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 आवर, ठीक है, 1 आवर की जगह पे लिखूंगा मैं 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, 6 1s are 6 2s are 12, सो इसकी जो स्पीड है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 200 मीटर, मगर पर मिनट। आप हमें होता था अक्सर, आप देखते थे पर सेकंड के हिसाब से, तब मुझे एक और 60 डिवाइड करना था, ठीक है। अगर याद होगा 5/18 वाला फैक्टर जो मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम है मिनट्स के हिसाब से, आई विल कीप इट एज इट इज, ठीक है, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब मैंने ये कहा कि जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वहीं से क्वेश्चन कह रहा है भाई, इसने जो डिस्टेंस काटी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पेरीमीटर हियर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर डिवाइड बाय इसको कितना टाइम आया दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना, वो हमें लगा इसको 8 मिनट्स। अब मुझे पता है जो पेरीमीटर हमें आया, इससे पहले मैंने कैलकुलेट किया, वो मुझे आया था 10x के बराबर, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको बोला कि जो डिस्टेंस है, सॉरी जो पेरीमीटर है यहाँ पे दैट इज ट्वाइस, पेरीमीटर यहाँ पे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ है, और मैंने कहा था लेंथ आपकी है 3x प्लस ब्रेडथ है 2x, 3 और 2x हो गया 5x इंटू 2 हो गया 10x, तो भी मैंने लिखा 10x डिवाइडेड बाय आपको लिखना है 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट। और यही वैल्यू जो हमने निकाला, ये जो निकाला 10x डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू द 200 मीटर पर मिनट, ठीक है, दैट इज दिस इज स्पीड, ये भी स्पीड है, ठीक है, यहां से निकला था हमें स्पीड, ठीक है। तो हमने निकाला ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट होगा, तो जब आप 8 को यहां पे लेके जाओगे तो ये बनेगा 8 2 16 और 0 साथ है, तब हमें निकला था x का वैल्यू 160। अब आप ये कहोगे कि सर मैंने, देखिए 10x जो है ये भी मीटर्स में ही था, और 8 जो था ये मिनट्स में था। अब यहां से भी जो है, you'll see that, just a minute here, 10x मीटर में था, ये इसका यूनिट था, डिवाइडेड बाय 8 मिनट में था, ये मिनट्स में था, इट इज इक्वल टू 200 मीटर डिवाइडेड बाय मिनट पर मिनट, यही था ना। तो मिनट मिनट भी कैंसिल होगा, मीटर मीटर भी कैंसिल होगा, ठीक है, ये जीरो के साथ कैंसिल होगा, और ये 8 इधर जाएगा तो बनेगा x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 160, नो यूनिट इज गोइंग टू बी एडेड, ठीक है, इज दैट क्लियर, क्योंकि मैंने सारे यूनिट्स को भी कट आउट किया, तो x आ गया। अब आप कहोगे मगर जो लेंथ है दैट्स इक्वल टू 2x मीटर, सॉरी 3x मीटर्स, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 160, उतने मीटर्स, ओके वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही ब्रेड थी, दैट्स इट। Now moving ahead, there is another question, क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है, ऑफ अ रूम हैविंग डायमेंशंस दिस, एंड इसमें जो हमें कारपेट और कारपेट की विड्थ है इसके हिसाब से, अब देखिए कारपेट की विड्थ है सेंटीमीटर के हिसाब से, और इसमें जो खर्चा आता है 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से। अब देखिए रूम जो होता है वो रेक्टेंगल है, क्या है, रूम इज आर रेक्टेंगल, ठीक है, और उसके जो डायमेंशन है वो ऐसे है, दैट इज अ 12 मीटर ऐसे, यू कैन ड्रा इट, एंड 8 मीटर ऐसे, यानी कि इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। सो हम कह सकते हैं इसका जो एरिया है दैट्स इक्वल टू 12 इंटू 8, वो किसके बराबर है, 8 2 16, 8 1 8, और 9 हो गया 96, इसका एरिया जो है 96 मीटर स्क्वायर है, ये हम आप कह सकते हैं। मगर आपको कह रहा है कि भाई मुझे इसमें कारपेट डालना है, और जबकि कारपेट मुझे मिल रहा है 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से, आप मुझे बोलिए इस प्लॉट में, ये इस कमरे में, इस रूम में मुझे कितना खर्चा आएगा, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे बी आस्क्ड, ठीक है।
अब जो वो कारपेट है वो कुछ ऐसा होगा, उसकी लेंथ होगी, वो रोल्ड होगा, ठीक है, मगर उसकी लेंथ तो है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है कि यहां से जो इसकी विड्थ है दैट इज 75 सेंटीमीटर, मगर मुझे चाहिए मीटर्स में। वी नो दैट जो 75 सेंटीमीटर है इसको आप लिख सकते हो 0.75 मीटर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे दिस इज नॉट 75 सेंटीमीटर, इट इज 0.75 मीटर, कह सकते हैं। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपने क्या लेना है, आपने एरिया निकालना है पहले, ठीक है ना। देखिए इसका एरिया आपने देखना है कि एरिया हमेशा बराबर होगा, जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया होना चाहिए, ठीक है। मगर इसकी एक डायमेंशन, सर्टेनली ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है इसकी क्या लेंथ आएगी, ठीक है, मुझे नहीं पता है इसकी क्या लेंथ आएगी। लेट दैट बी एक्स, लेट दैट बी एक्स। तो इस कारपेट का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ कारपेट जो है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0.75 मीटर इनटू एक्स, ठीक है। और वही एरिया है, क्योंकि मुझे यही कारपेट डालना है, किसको, रूम को डालना है, एंड इसका जो एरिया है दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो 96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75, ठीक है, इनटू एक्स, ठीक है, उतने मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक्स भी मीटर्स में होगा। मगर जब आप देखोगे यहाँ पे व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस वेरी थिंग, जो हमें एक्स आएगा वो क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 96, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.75, 96 डिवाइड बाय 0.75, तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू, दैट्स गोइंग टू बी द लेंथ। हाँ जी, 96 divided by 0.75, it is going to be equal to 128, इतने मीटर्स, x भी मीटर्स में ही है, x is equal to 128 मीटर, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड कि आपको कारपेट कितना लगेगा। अब आपको पता है भाई ये जितना भी रूम है इसका जो एरिया है उसके हिसाब से मुझे कितनी लंबाई चाहिए, ये 128 मीटर, ठीक है। लेकिन एक मीटर पे खर्चा आता है 20 रुपए, तो मुझे बोलिए 128 मीटर पे कितना खर्चा आएगा इसको कारपेटिंग में, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 128 इंटू 20 रुपीज, तो वो किसके बराबर है, 256, sorry, that is 250, 2560, हाँ, टू, यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ मैं, that's going to be equal to 2560. Okay, now moving ahead. देखिए अब रेक्टेंगल में एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑन द पाथ, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर पे हम लोग एक पाथ बनाते हैं, हमने अक्सर देखा होगा पब्लिक पार्क्स में। इवेलुएट 96 इंटू बाय, हाँ हाँ, रिपीट, ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट। मैंने बोला था रेक्टेंगल एक का जो एरिया है, रेक्टेंगल इसका जो कारपेट रूम का जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट, ये 8 था, ये 12 है, इसका जो एरिया आया था दैट वाज द 96, ये मुझे पता है। अब इसी पे मुझे जो है, मुझे क्या करना है, इसको कारपेट डालना है। मुझे जो कारपेट का साइज है उसकी जो विड्थ है दैट इज 0.75, ठीक है। अब सर्टेनली जो यहाँ पे जो एरिया है, देखिए मुझे जो जितना भी ये कारपेट मिलेगा वो मुझे इसमें डालना है। सर्टेनली इसका जो एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, मगर इसके डायमेंशंस डिफरेंट है। ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल, एरिया तो बराबर है
दो रेक्टेंगल्स का एरिया बराबर हो सकता है बट उनके डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे कितना कारपेट इसको लगेगा, ठीक है, मुझे देखनी है उसकी क्या लेंथ है, क्योंकि हमें पता है जो कारपेट होता है वो रोल्स में होता है, ठीक है, रोल्ड होता है, ठीक है, वो इस हिसाब से होता है, यू नो दैट दिस इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, रोल्स में होता है। सो यू कैन से दैट कि उसकी विड्थ तो मुझे पता है बट आई डोंट नो कि उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो लेट दैट लेंथ बी एल, लेट अस से दैट इज एल, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, सेम, दोनों रेक्टेंगल हैं। अब मैं लिख सकता हूं जो ये कारपेट वाली एरिया है, इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ कारपेट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.75 इनटू लेंथ, ठीक है। एंड जो एरिया ऑफ रूम है वो किसके बराबर है, दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे दिस इंप्लाइज आई कैन से दैट जो 96, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है 96, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.75 इंटू एल। तो अगर मुझे एल लिखना है ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू 96 डिवाइडेड बाय 0.75, तो वही आया वैल्यू 128 मीटर्स। तो आ गया जो ये कारपेट है इसकी लेंथ आ गई आपके पास 128 मीटर्स। अब आप मार्केट में जब आप जाओगे आपने कारपेट खरीदना है, यू विल टेल टू दे जो शॉपकीपर है, आप उसको बोलो, जो कारपेट वाला होगा उसको बोलो कि भाई मुझे ये वाला कारपेट चाहिए, इसके इतने मीटर्स है, ठीक है। वो कहेगा ठीक है इसकी रेट है 20 रुपीज। अगर आपको जो है ये 20 मीटर 128 मीटर चाहिए, सो यू डायरेक्टली टेक 1 मल्टीप्लाई इट 128 इंटू, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से इतना, तो उसकी रेट क्या बनेगी वहां पे, इफ यू मल्टीप्लाई इट 128 कितना होता है उसका दुगना, दैट इज 256, ठीक है, 01 ऐड होगा, ये इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। ये है कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट, यू शुड नो दैट। ये इस कारपेट को डालने के लिए ये इतना कास्ट बनेगा 2560, और उसकी जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 128। इज दैट नाउ क्लियर? अब क्लियर है? नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, व्हाट आर यू, ये क्या है? देखिए 96 जो है, क्या ऊपर नहीं आएगा, नहीं, वाई यू आर डूइंग दैट वेरी थिंग, नहीं नहीं, देखिए 96 को आप सीधे डिवाइड करो बाई 0.75, अच्छा नहीं करो 0.75, वाई यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट दिस वेरी थिंग। आपको पता है जो 0.75 है, जरा मुझे बोलो 0.75 जो है इट इज इक्वल टू द 75 बाई 100, ठीक है। और वो आप लिख सकते हो 25 3 जार 25 4 जार, आप इसको लिखो 3/4, 0.75 it is also equal to 0.75, let me tell you here, मुझे आई आप समझ, मुझे लगा था आपको क्वेश्चन में कहीं पे कंफ्यूजन है, ठीक है। इट इज 0.75, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 3/4, ठीक है, 0.5 जो है वो 3/4 के भी बराबर है, ओके। सो आप लिख सकते हो 96 डिवाइडेड बाय 0.75 की जगह पे 3/4, ठीक है, ये ऊपर चढ़ेगा ये नीचे ही रहेगा, सो ये आएगा यहाँ पे, दिस सिंपलाइज जो लेंथ है दैट्स इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, तो 3 1 जार 3 3 जार 3 2 जार, तो आप लिख लीजिए जो 32 इंटू 4 किसके बराबर है, 32 इंटू 4 किसके बराबर है, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 128, वही तो आई ना लाइन, लेंथ इज 120, नाउ इट इज क्लियर, 128 मीटर, 100 की बात नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 96 डिवाइड बाई 0.75, इसको मैं लिख सकता हूँ 75 डिवाइडेड बाई 100, तो वो होता है 96 डिवाइडेड बाई 75, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा इंटू 100, ठीक है। 75 1 जार 75 में से अगर मैं करूंगा 25 3 जार 25 4 जार 3 1 जार 3 3 जार 3 2 जार, दैट इज 4 इंटू, चलो अच्छी बात, वेरी गुड।
ओके, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस वेरी थिंग। अब मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये रेक्टेंगल ही है, लेकिन बात हो रही है पाथ की। आपने अक्सर देखा होगा जो पार्कस होते हैं उनको ऐसे आउटर वॉल्स पे क्या होता है कि कोई पाथ बना के होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग, इसको हम कहते हैं आउटर पाथ। वी डू हैव द रेक्टेंगुलर पाथ। ये तीन टाइप के होते हैं, या तो इनर पाथ होगा, या तो आउटर पाथ होगा, या तो क्रॉस पाथ होगा। लेट मी टेल यू, दिस इज कॉल्ड एज ए इनर पाथ। इनर पाथ क्या होता है कि भाई जब आप डायमेंशन देखते हो बाहर से, ये आउटर आउटर डायमेंशन लोगे, ठीक है, दिस इज द लेंथ, यहां से लेकर यहां तक आ गई लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक आ गई ब्रेड, ठीक है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जो ये पाथ है, इसकी जो थिकनेस है दैट्स कॉल्ड एज अ विड्थ, दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, ठीक है, ओके। व्हेन यू आर आस्क्ड, आपको अक्सर ये बोला जाता है कि भाई आप कैलकुलेट कीजिए इसका जो एरिया क्या है, इस पाथ का एरिया क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट एरिया, ठीक है। इसको हम कहेंगे इनर पाथ, ठीक है, इसको ये बन जाता है हमारा इनर पाथ, ठीक है। अनदर इज आउटर पाथ। आउटर पाथ में क्या है, लेट मी टेल यू, कैलकुलेशन में बाद में दिखाऊंगा। दिस इज अ प्लॉट। अब इस पार्क के बाहर साइड से आप देख रहे हो, इसको बाहर से जो है गवर्नमेंट ने पाथ डाला है। अक्सर जो है ये आप देखोगे, दिस इज आल्सो द सेम टाइप ऑफ द पाथ। हिस्ट्री क्लास होगी स्टार्ट सच में। अब रूप सर में आज वेरी 8:10 क्लास एट 8:10, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं उनको कल बोलूंगा कि टाइम इज अप टू दी 8:30, तो काइंडली यू ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर क्लास आफ्टर 8:30, बट स्टिल कोई बात नहीं, वी ऑलरेडी गिव द सफिशिएंट टाइम। तो हमारा जो है दैट इज 8:23 हो गया है, इट्स जस्ट ओके, कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम हियर, हम कल देखेंगे, ठीक है, ओके, इज दैट ऑल क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है, यू पीपल कैन टेक्स्ट, you people can text, otherwise you can have your another class, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।